So, in the previous video, we have studied that Zahi Hawass, the Secretary General of Egypt, looked the body and said that mummy was in a bad condition because the British archaeologist named Howard Carter examined it when he discovered the tomb, basically King Tut's tomb, in 1922. Then we came to know all the richest things, the artifacts, and the beautiful things that were buried with the body, which could be used in the next life. Then, after few months, Carter took the record of the treasury found in Tut's grave. Then he started investigating the 3 layers of the coffin. Then in the smallest coffin, in the innermost coffin, there was the body which got stuck to the bottom of the coffin, which was made of gold. It was due to the resin. Resin is the substance to harden the body, which the resin basically cemented the body, and that is the reason it got stuck from the bottom. So the only option which was left to with Carter is to cut the body, and he also tried to loosen resin by keeping the body in hot sun, but it didn't work. So the only option which was left to him to cut the body from the with the chisel. So now Carter also believed that if he hadn't do this, then thieves would remove the gold from the tomb and would have looted it. They would have cut the body. Then we came to know all the precious things like necklace, decorative patterns, bracelets, riches, amulets, etc. have been there in the innermost coffin with a mask. Let's read further. Okay. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and served nearly very major joint. Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in the wooden box with padding that concealed the damage, the bed where Tut now rests. So adornments मतलब jewelries, and concealed का मतलब होता है to hide the damages. ठीक है? So what happened now? Now the men of Carter, those who were working with Carter, what they do, they removed Tut's head and every joint of his body, और जितने भी पुर्जे थे, जितने भी joints थे body के, वो सब कुछ remove कर दिए. After they finished, they reassembled the remains in the wooden box. और जब ये सब उन्होंने सब कुछ अलग अलग कर लिए थे, सारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स थे, उन्होंने फिर से उसको रीअसेंबल किया एक वुडन बॉक्स में विथ पैडिंग फिल्ड विद अ लेयर ऑफ सैंड टू कंसील द डैमेज. सो जो डैमेज हुआ था तो उसको छुपाने के लिए उन्होंने जो बॉडी थी उसको रीअसेंबल किया वुडन बॉक्स में, और उस वुडन बॉक्स की जो लेयर थी एक, वो सैंड की थी. इट वॉज हिज न्यू रेस्टिंग प्लेस, और वो टट की बॉडी की न्यू रेस्टिंग प्लेस बन गई. ओके, लेट्स रीड फर्दर. आर्कियोलॉजी was changed substantially in the intervening decades. Intervening मतलब occur in time between events. जो events के बीच का जो time होता है उसको intervening बोलते हैं. Focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. Intriguing are the events which arose one's curiosity.
आपकी जानने की इच्छा बढ़ाए जो, those events are known as intriguing. Let's read further. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. Startling मतलब अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग फैक्ट, जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है. Beneath the resin, the cakes that cakes his chest, his breastbone and front bones ribs are missing. So now what happened now? Now in the past few decades, archaeology has changed as it now focuses on the details of life and mysteries of death. So कुछ पास्ट फ्यू डेकेड से जो आर्कियोलॉजी है, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो चेंज हो गया है. वो बेसिकली अब फोकस करता है डिटेल्स की, लाइफ कैसी थी और डेथ की मिस्ट्रीज़ क्या थी. अर्लियर इट वाज अबाउट फोकसिंग ऑन द ट्रेजर. जो पहले के आर्कियोलॉजिस्ट थे वो बेसिकली ट्रेजर पे, ट्रेजर मीन्स वेल्थ, जो मनी है, जो उनका सामान है, उन पर फोकस करते थे. पर अब की जो आज की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो किस पे फोकस करते हैं? जो डिटेल्स हैं लाइफ के, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ के. नाउ इट यूजेस मोर एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज़. अब की जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है दे यूज़ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं मेडिकेशन के लिए, एंड टूल्स फॉर रिसर्च, एंड दे ऑल्सो यूज़ एडवांस टूल्स फॉर देयर रिसर्च. इन 1968 एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे करा किंग टुट्स के ममी का, एंड ही रिवील्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फैक्ट कि जो उनकी फ्रंट की लिम्ब्स थी और उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी वो मिसिंग थी. Let's read further. The next paragraph says, today diagnostic imaging can be done with computed tomography. Computed tomography का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं CT scan. It is 3-dimensional scan of the body with the help of hundreds of X-rays in cross section together. तो जो X-rays होती हैं, जब हम उसको अलग अलग जगहों से क्रॉस सेक्शन करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो 3 लेयर डायमेंशन की वो बॉडी को स्कैन कर लेती हैं, और वही उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ऑल्सो वी कॉल इट एज CT स्कैन. लेट्स रीड फर्दर. और CT, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die, and how old was he at the time of his death? King Tut's demise means death, was a big event even by royal standards. He was the last of his family line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. Death rattle का मतलब gurgling sound produced in throat of a person who is about to die. तो जब मरने वाले होते हैं, एक गर्गलिंग साउंड जो प्रोड्यूस होता है पर्सन की थ्रोट को में, उसको हम बोलते हैं डेथ रैटल. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ was unclear. So now this paragraph means that the paragraph is telling कि जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, जो विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जैसे कि CT स्कैन आ गया है जिसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोलते हैं, दैट कैन गिव अस अ वर्चुअल इमेज ऑफ द होल बॉडी. वो हमें एक वर्चुअल इमेज दे सकता है. जब हम एक्सरेज कराते हैं, जब हम CT स्कैन कराते हैं, तो वो हमें क्या देता है? एक वर्चुअल इमेज देता है. एक पेज पर एक इमेज देता है हमारे अंदर की बॉडी का.
With the help of this technology, King Tut's body would be examined to find answers to two questions. अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो किंग टुट की जो बॉडी है उसको स्कैन करा जा सकता है और दो आंसर्स जो पाए जा सकते हैं उन दो क्वेश्चंस के जो अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है. और वो दो क्वेश्चंस क्या थे? हाउ ही डाइड एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. नाउ हिज डेथ वॉज अ शॉक टू द रॉयल्स. जो उनकी डेथ थी वो एक तरीके की शॉक था उनके लिए. ऑल्सो क्योंकि वो एक लास्ट पर्सन थे अपनी फैमिली के, उस डायनेस्टी के लास्ट किंग रहे हैं वो. एंड हिज फ्यूनरल इंडिकेटेड द डिमिनिशमेंट ऑफ हिज डायनेस्टी. और उनका जो फ्यूनरल था, उनकी जो डेथ थी, वो इंडिकेट करती है उनकी डायनेस्टी की भी डेथ. However, what happened after death is still not clear. और क्या डेथ के बाद क्या हुआ वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of the Egypt. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. His father shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his image and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. Wacky मतलब amusing in a very odd way. So क्या हुआ था, ये अब इनकी हिस्ट्री है. ये पैराग्राफ हिस्ट्री बता रहा है कि टुट्स के पहले जो किंग आए उन्होंने क्या क्या किया. तो टुट्स फादर या फिर उनके ग्रैंडफादर ये नोन नहीं है. उनके ग्रैंडफादर या उनके फादर का नाम था एमेनहोटेप III, जो एक पावरफुल फ़ैरो डायनेस्टी के किंग थे. उन्होंने 40 इयर्स का पीरियड रूल किया है. हिज सन, अब उनके सन का नाम था एमेनहोटेप IV, जिन्होंने सक्सीड किया एमेनहोटेप III को. एंड began the strangest period in the history of Egypt. सो इजिप्ट की हिस्ट्री में जो सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड रहा है वो रहा है एमेनहोटेप IV का. ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, जो सन की वर्शिप है, जिनको एटन बोला जाता है इजिप्ट में, उनकी वर्शिप, उनकी पूजा, सूर्य पूजा को इन्होंने प्रमोट किया. ही चेंज हिज नेम, उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया. उनका नाम पहले क्या था? एमेनहोटेप IV नाम था उनका, बट अब उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया है? एखनाटेन, जिसका मीनिंग होता है सर्वेंट्स ऑफ एटन्स, सूर्य भगवान के सेवक. ठीक है, इसका मतलब ये है. ही ऑल्सो शिफ्टेड द रिलीजियस कैपिटल, जो रिलीजियस कैपिटल हुआ करती थी उस समय उस डायनेस्टी की, वो थी थीब्स, पर उनकी जो टू द न्यू सिटी ऑफ एखनाटेन कॉल्ड अमारना. सो पहले थीब्स थी रिलीजियस कैपिटल, बट जब जैसे वो पावर में आए, एखनाटेन जब पावर में आए थे, तब उन्होंने न्यू सिटी को रिलीजियस कैपिटल बना दिया था, जिसका नाम भी एखनाटेन था, जो अब अमारना बोला जाता है आज की डेट में उस सिटी को. फर्दर ही अटैक्ड एमन. अब एक और स्ट्रेंजेस्ट थिंग जो ऑड वे में जो उन्होंने किया वो था अटैकिंग एमन, अ गॉड. एमन एक गॉड थे जिनको उन्होंने अटैक किया.
कैसे अटैक किया? ही स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, उनके सारे टेम्पल्स बंद करवा दिए और उनकी सारी इमेजेस को हटवा दिया, ख़राब कर दिया। रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के। ही सेड दैट इट मस्ट हैव बीन अ बैड टाइम फॉर द एम्पायर एज द फैमिली हु रूल्ड फॉर सेंचुरीज केम टू एन एंड एंड Akhenaten मूव्ड इन एन ऑड डायरेक्शन। सो उन्होंने, रे जॉनसन हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उन्होंने ये कहा कि ये जो टाइम पीरियड रहा होगा एम्पायर के लिए वो काफ़ी बैड टाइम रहा होगा, क्योंकि जो फैमिली जो सालों से, इतनी सेंचुरी से जो रूल कर के आ रही है इजिप्ट को, वो एंड पर आ गई और Akhenaten उस टाइम पर ऐसे ऑड मूव्स और डायरेक्शंस कर रहा था। ठीक है, it to 149 degree Fahrenheit. Nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had been chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. Blazing मतलब बहुत गर्मी, very hot. Budged means move or shifted, a slight movement, किसी चीज़ का मूवमेंट होना हल्का या शिफ्ट करना। चिजल्ड अवे मीन्स टू कट समथिंग विद अ चिजल। चिजल एक शार्प मटेरियल होता है, एक टूल होता है। सो व्हाट हैपेंड नाउ? कार्टर ट्राई टू लूजन रिजन बाय कीपिंग द बॉडी इन द हॉट सन। सो कार्टर ने ट्राई किया कि अगर इस बॉडी को हम बहुत ज़्यादा गर्मी में रखेंगे, हॉट सन में रखेंगे, तो शायद ये जो रिजन, ये जो मटेरियल है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाए और बॉडी जो चिपकी हुई है नीचे से वो शायद निकल जाए। ही केप्ट द मम्मी इन 149 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट फॉर सेवरल आवर्स बट स्टिल इट रिमेन्ड स्टक। बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो स्टक ही रही। It remained stuck. He reported that a chisel could be used to cut down the mummy from the limbs and the trunk so that Tut's body could be taken out of the coffin. So उन्होंने ये suggest किया, रिपोर्ट किया उन्होंने कि चिज़ल यूज़ हो सकती है इनकी बॉडी को निकालने के लिए। उनके जो लिम्स हैं, जो पैर हैं, वो अलग करके और उनकी जो ट्रंक है वो उसको अलग करके बॉडी को पूरा निकाला जा सकता है। Okay, so let's read further. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut Mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. Circumvented मतलब find a way around. So thieves would have found a way to tackle the guards and remove the गोल्ड फ्रॉम द टूम्ब। सो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे कार्टर तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मम्मी है वो थीव्स काट देंगे, उसको कट कर देंगे, क्योंकि थीव्स को मतलब है गोल्ड से। तो थीव्स समहाउ मैनेज कर लेंगे गार्ड्स से टैकल करने में और फिर उसका जितना भी टूम्ब का जो गोल्ड है वो चुरा के ले जाएंगे। In Tut's time, the royal was fabulously wealthy, and they thought or hoped that they could take their riches with them. They could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace. Inlaid मतलब decorative pattern का necklace and bracelet, ring, amulets. Amulets is a ornament या फिर एक ज्वेलरी, एक small piece of jewelry होती है that thought to give against evil, danger or any disease. बहुत सारे लोग होते हैं जो अंगूठियाँ पहनते हैं, बहुत स्टोन्स पहनते हैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए एविल से, डेंजर से या फिर किसी डिजीज़ से, तो उसको हम एम्यूलेट्स बोलते हैं। ओके, सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से नाउ, अकॉर्डिंग टू कार्टर,
he had no choice other than to cut the mummy. उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसने रेजन लूज़ करने के लिए देख लिया, वो भी नहीं हुआ, तो एक ही चॉइस बची थी, टू कट द मम्मी. ही बिलीव दैट इफ़ ही हैडंट डन दैट, उसको ये बिलीव था कि अगर उसने नहीं किया तो थीव्स वुड हैव रिमूव द गोल्ड फ्रॉम द टूम एंड वुड हैव लूटेड इट, और उनको लूट के लेके चले जाएंगे. During Tut's time, the royal power was very wealthy, and they had a belief that after death they could take the wealth along with them. So उस टाइम पे जब फ़ैरो डायनेस्टी थी, टट्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग वेल्दी हुआ करते थे, वो बहुत वेल्दी थे, और उनका एक बिलीव था कि डेथ के बाद वो जितनी भी वेल्थ है वो अपने साथ लेके जाते हैं, उनके साथ ही बरी होती है. दे कुड टेक द वेल्थ along with them. For his life after death, he was given precious collar necklace with decorative patterns, bracelets, rings, amulets. So, उनको after his death उनको हर चीज़ मिली, उनको हर चीज़ के साथ क्या कहते हैं, उनकी जो डेड बॉडी थी उनको सारी चीज़ों के साथ, सारी वेल्थ के साथ उनको बरी किया गया था. किन किन चीज़ों के साथ बरी किया गया था उन्हें? जो नेकलेस हैं, डेकोरेटिव पैटर्न के ब्रेसलेट्स हैं, रिंग्स हैं, एम्यूलेट्स हैं, सेरेमोनियल एप्रन्स हैं, सैंडल है, शीथ है. ना शीथ क्या होता है? क्लोज फिटिंग कवर होता है एक शीथ. एप्रन क्या होता है? अ प्रोटेक्टिव गारमेंट वॉर्न ओवर द फ्रंट ऑफ वंस क्लोथ एंड टाइड एट द बैक. आपने एप्रन सुना होगा, जो क्लोथ के ऊपर पहना जाता है और पीछे के साइड से बंधता है, उसको एप्रन बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उनके साथ जाती हैं, ठीक है, उनके साथ ही बरी होती हैं. दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो.